application of Gauss's theorem. First application will be electric field due to a hollow charged sphere. Hollow charged sphere. How can you find electric field due to a hollow charged sphere? And this is the most important question for coming examination. Okay, this is the hollow charged sphere. So upon which प्लस क्यू चार्ज. ओके, तो इस स्फीयर होलो स्फीयर पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है. और हियर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ओके, तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर भी पॉइंट है. स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है. स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ होलो चार्ज्ड स्फीयर. ओके, सो दिस इज द पॉइंट पी. Or now draw an imaginary sphere of radius small r taking O as the center. Okay, so how can you find electric field at this point? Okay, or this is the application of Gauss's theorem. Okay, so total outward normal electric flux due to Gaussian sphere. इसमें जितना भी होगा Gaussian shape पर अप्लाई होता है Gauss's theorem. So phi equal to E into A. As आप जानते हो E equal to होता है कितना? phi by A normal flux per unit area. So phi equal to E into A. So this will be and area Gaussian sphere का surface area क्या होगा? 4 pi r square. इसलिए कि phi will be E into A, E into 4 pi r square. And this is equation number 1. And from Gauss's theorem, what is Gauss's theorem? Gauss's theorem, total outward inward flux is equal to Q in by epsilon naught. यानी Gaussian shape के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज ले लेते हैं, epsilon naught से डिवाइड कर देते हैं, तो Q by epsilon naught. And this is the equation number 2. And coming from a statement of Gauss's theorem. And what is a statement of Gauss's theorem? Phi equal to Q by epsilon naught. So from equation 1 and equation 2, we can write this will be into 4 pi r square and equal to Q by epsilon naught. So E equal to how much? Q by 4 pi epsilon naught r square. So E equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. तो दिस चार्ज इज कंसंट्रेट एट दिस पॉइंट. और इससे पहले हमने बताया था क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी हो, तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो दिस बिहेव्स द पॉइंट चार्ज. सो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इफ आर इंक्रीजेस, E decreases. R decreases, E increases. If we draw a graph between E and R, E versus R, graph becomes hyperbolic. Okay, and if we draw graph between E versus 1 by R square, graph will be a straight line. Okay, now here is in this part, case number 2 will be, if a small r equal to capital R, then this Gaussian sphere, this is the Gaussian sphere, this is the Gaussian sphere, Gaussian sphere, Gaussian sphere, okay, and Gauss's theorem is always applicable on Gaussian shape. Okay, so if a small r is equal to capital R, then Gaussian sphere coincides with earlier sphere. So E equal to Q by 4 pi. The application number 2. And this is a solid charged sphere. So how can you calculate electric field due to uniformly charged solid sphere? This is a solid charged sphere and this is the point P and this is R. So here distance from the center from point P is R. So R is greater than capital R.
मतलब point is outside the solid charged sphere. तो how can you calculate electric flux? तो outward normal electric flux due to Gaussian sphere. Now here draw an imaginary sphere. This sphere is known as Gaussian sphere because Gauss's theorem is applicable only upon Gaussian shape. Okay, so this is the Gaussian sphere, this is the Gaussian shape. So total outward normal electric flux equal to phi equal to E into A. So E and area, what is the surface area? 4 pi r square. So this is the equation number 1. From Gauss's theorem, total outward normal electric flux phi equal to Q in by epsilon naught. अब बताओ यहाँ से गॉसियन शेप है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टोटल कितनी चार्ज है Q, तो Q by epsilon naught, and this is the equation number 2. So from equation 1 and equation 2, E into 4 pi r square equal to Q by epsilon naught, E equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. So E varies is 1 by r square. यानी फर्स्ट एप्लीकेशन जो था उसमें भी आउटसाइड में यही केस आया था. Now case number 2, if a small r is equal to capital R, so P point is on the surface of a sphere. यह स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा, इसीलिए करके स्मॉल r के जगह पर आप कैपिटल R लिख सकते हो. एंड दिस इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. So small r is replaced by capital R equal to Q by 4 pi epsilon naught r square, and this is the maximum electric field. Okay. Now here is case number 3, the most important case. If a small r is less than capital R, a small r capital R से less हो तो point is inside the charged sphere. Okay. So this is the point. How can you calculate electric field at this point? तो total outward normal electric flux due to Gaussian sphere. अब ये स्मॉल r को रेडियस मान के O को सेंटर मान करके यहाँ पर एक गॉसियन स्फीयर हम खींचते हैं और इसी पर गॉसियस थ्योरम लगाते हैं. तो फाई इक्वल टू कितना E इंटू सरफेस एरिया, क्योंकि आप जान रहे हो E इक्वल टू होता है फाई बाई ए और फाई इक्वल टू E इंटू ए. तो E होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम गॉसियस थ्योरम फाई इक्वल टू कितना होता है, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो Q इन हमने माना है यहाँ पर बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो हाउ कैन यू फाइंड चार्ज इनसाइड द गॉसियन शेप? तो हाउ कैन यू फाइंड इट? बिकॉज टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है ये Q. तो बताओ ये स्फेरिकल शेप है और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब. ये कंटेंट्स कितना चार्ज Q चार्ज. यूनिट वॉल्यूम कंटेंट्स कितना Q बाई 4/3 पाई r क्यूब. ये बड़ा वाला स्फीयर बड़े वाले चार्ज यानी Q को देता है. तो ये स्फीयर का जो वॉल्यूम है इसके अंदर कितना चार्ज होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा. 4/3 पाई r क्यूब पर कितना चार्ज होगा, तो Q इन की वैल्यू निकल जाएगी Q r क्यूब और बाय r क्यूब. ओके. तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q in inside equation 2. ओके. सो फाई इक्वल टू Q इन के जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं और बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 3 है. Now from equation 1 and equation 3 you can easily write E into 4 pi r square equal to Q r cube by epsilon naught r cube. So 4 pi epsilon naught ये r square यहाँ पर देख रहे हो एक कट जाएगा, ये चीज हो जाएगा. और इस तरह से Q कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, r cube कांस्टेंट. So E is directly proportional to r. So if we draw a graph between electric field versus R, you can see
इफ r इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। r कहाँ पर 0 होगा? इसके सेंटर पर। तो ये ग्राफ आप देख लो, लीनियर ग्राफ है, e पर पावर 1 r पर पावर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स a स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो ये ग्राफ विल बी दिस, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है? मैक्सिमम। स्मॉल r कैपिटल R के बराबर कब होगा? जब पॉइंट कहाँ हो? स्फीयर के सरफेस पर। और इसके बाद स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, तो वो केस क्या आया हुआ है? E वेरिएशन 1/r², यानी ये धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ। और इन ग्राफ मिनिमम 1.5 मार्क्स का ये चीज पूछा जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल वेरिएशन क्या है। तो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 2 एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब दोनों में कंट्राडिक्शन भी आप देख रहे हो, थोड़ा सा यहाँ आकर के ग्राफ किस तरह का हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ओके। एप्लीकेशन नंबर 3, electric field due to a charge shift. This is a charge shift. Charge shift, just like paper type sheet. तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चार्ज आप देख रहे हो, चार्ज दोनों तरफ है, और यहाँ पे ये सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस विल बी द चार्ज डेंसिटी, दिस विल बी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज द एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ओके। तो गॉसियस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली गॉसियन सेट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया दैट इज ds एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एनी लेंथ का एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, ये फाई जो होता है वो वेक्टर ई डॉट ऑफ एरिया वेक्टर होता है, और जहाँ डॉट होता है वहाँ कॉस आता है। तो एक कर्व सरफेस जो होगा उसका वो एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कर्व सरफेस एरिया के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, एक कर्व सरफेस एरिया के कारण फ्लक्स क्या होगा, 0। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वहां पर फ्लक्स होगा। सो टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लक्स, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड फ्लक्स। ये फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, और चूंकि चार्ज जो है इधर भी है और इधर भी है, इस चार्ज के कारण भी क्या होगा, E इंटू डी एस। सो दिस विल बी ट्वाइस E इंटू डी एस, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम, टोटल आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखना है कि ये जो गॉसियन शेप है इसके अंदर कितना चार्ज है। ये हम जान रहे हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए, एंड Q और एरिया क्या है, ds, सो Q इक्वल टू सिग्मा ds। सो यहाँ पर Q इन के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, सिग्मा ds। सो फाई इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हियर इज इक्वेशन नंबर 1, and both are electric flux. From equation 1 and equation 2 we have twice E ds equal to sigma ds by epsilon naught. Ds and ds will be cancel out, so E equal to sigma by 2 epsilon naught. Sigma is constant, 2 is constant, epsilon naught is constant, so electric field will be constant.
if we draw a graph between E versus R, since electric field is independent on R, and due to this, graph will be a straight line parallel to R axis. Okay.